السلام علیکم۔ مولانا ججیت انصاری کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل القرآن انسائٹ کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ انہی لوگوں پر معاف ہے جو مسافر ہو، معاف نہیں ہے۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ معافی کا کو اس معنی میں نہیں لینا، رخصت ہے، یعنی آپ سفر میں ہیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں آپ کو پورا کرنا پڑے گا۔ کسی نے روزے رکھے اور سفر آ گیا، 3-4 روزے سفر میں چھوٹ گئے، اب عید کے بعد بہتر ہے کہ پہلے اپنے قضا روزوں کی جو روزے چھوٹ گئے ان کو قضا کرے، اس کے بعد عید کے جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں نفل ہیں، رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو، ششعید کے روزے جن کو بولتے ہیں وہ رکھیں، رخصت ہے، بعد میں آپ کو کرنا پڑیں گے۔ لیکن اگر دوسرا سال آنے سے پہلے، دوسرا مہینہ رمضان کا، دوسرا رمضان آنے سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، چاہے وہ ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، اگر انتقال ہو جاتا تو جتنے روزے چھوٹے ہیں اس کے روزے اس کے ولی پورا کریں گے۔ ولی کا مطلب جانتے ہیں؟ اگر باپ انتقال کر گیا اور روزے اس کے چھوٹے ہوئے تھے، سفر میں تھا یا بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے تھے 4، 5، 10 روزے، اور دوسرا رمضان آنے سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کا یہ روزہ اس کی بیوی پورا کرے گی۔ بیوی نہیں رکھ سکتی تو بیٹا رکھے گا، بیٹی رکھ لے، بہن رکھ لے، بھائی رکھ لے، اس کے گھر کا کوئی بھی آدمی یہ روزے رکھ سکتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی بیچارہ رمضان کے مہینے میں ہے اور 10 روزے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، یا 4 روزے رکھ کر انتقال ہو گیا، یا 8 روزے رکھ کر انتقال ہو گیا، تو اب وہ بقیہ روزے نہیں رکھ سکا تو ان روزوں کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس نے پورا مہینہ پایا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ پورا مہینہ پاتا اور روزے چھوٹتے تب تو پورے کرتا، لیکن اس نے پائے ہی 8 ہیں، اس کو 20 یا 22 روزے اور رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس لیے وہ روزے پورے نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ وہ بیچارہ رکھ ہی نہیں سکا، کیونکہ اس سے پہلے اس کو اٹھا لیا گیا۔ لیکن پورا مہینہ پایا اور پورے مہینے میں 2، 3، 5، 6، 8، 10 روزے چھوٹ گئے اور دوسرا رمضان آنے سے پہلے وہ نہیں رکھ سکا، انتقال کر گیا، تو اس کے چھوٹے ہوئے روزے اس کے ولی پورا کریں گے، اس کے گھر والے پورا کریں گے۔ اسی طریقے سے جو بہت بیمار ہے اور دائم المریض ہے، جس کو ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے، تو ایسا آدمی روزہ چھوڑے گا لیکن اس کے باوجود بھی فدیہ اس کو دینا پڑے گا۔ جیسے اس وقت میرے والد صاحب ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، آکسیجن لے رہے ہیں، صبح دوپہر اور شام کو بھی ان کی دوا چلنا ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن نہ رکھنے کے بعد بھی ان کو فدیہ دینا ہے۔ جو فدیہ وہ نہیں دیں گے تو ان کا بیٹا دے گا، کیونکہ ہم ہی ان کی ملکیت ہیں، تو ہم کو دینا پڑے گا۔ اور فدیہ کیا ہے؟ 30 روزوں کا فدیہ یہ ہے، 30 مسکینوں کو ہم کھانا کھلائیں گے۔ اگر 30 مسکین آپ کو نہیں ملتے ہیں کھانا کھانے کے لیے آپ کے گھر پر، تو 2 مد گیہوں ایک دن کے فدیے کے حساب سے آپ دیں گے۔ 2 مد گیہوں سمجھتے ہیں آپ؟ آدھا سا، 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے، 4 مد گیہوں کا 1 سا ہوتا ہے، تو 4 مد کا 1 سا تو 2 مد کا آدھا ہو گیا، تو آدھا سا، 1 سا ہوتا ہے 2.5 کلو کا، تو آدھا سا ہوا 1.25 کلو کا، یعنی 1.25 کلو گیہوں، یا اس کی قیمت کے حساب سے 30 دن 29 جتنے روزے پڑیں گے اس کی قیمت آپ کسی غریب کو دے دیں گے، یہ فدیہ ہوگا۔ 2 مد یعنی آدھا سا، معاف اس کے اوپر بھی نہیں ہے۔ اتنا مریض آدمی، سوچو جو بڑھاپے کی دہلیز پر ہے، جس کو روزہ رکھنا منع ہے ڈاکٹر کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اس کو بھی یہ کہا کہ ایک فدیہ دو غریب کو، تو جو ہٹے کھٹے ہیں ان کے اوپر سے روزہ کیسے رخصت ہو جائے گا؟ جو تندرست ہیں ان کے اوپر سے روزہ کیسے معاف ہو جائے گا؟ ایسے ہی کوئی عورت حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، اب اس بچے کی نشو نما کے لیے بہرحال اس کو کھانا پڑے گا، اور کھائے گی تو بچے کی صحت کو لگے گا، ایسی پوزیشن میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس کے بعد میں وہ جب بھی موقع ملے اس کی قضا کرے گی۔ سوال یہ مولانا صاحب اس کو موقع نہیں ملا، اب کیا کرے گی وہ؟ کیونکہ جب تک دوسرا رمضان آیا اس سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا، اب جب بچہ پیدا ہوا تو اب 2 سال اس کو دودھ پلا رہی ہے، تو یہی حکم دودھ پلانے والی عورت کو بھی ہے کہ دودھ پلانے والی عورت کو بھی روزہ رخصت ہے، یعنی اگر اس کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں کھاؤں گی اور پیوں گی نہیں تو دودھ نہیں بنے گا، اور جب دودھ نہیں بنے گا تو بچہ بھوکا رہ جائے گا، تو ایسی عورت کے اوپر سے بھی روزہ رخصت ہے۔ اب وہ اس سال کے بھی روزے چھوڑتی ہے تو چھوڑ دے، لیکن چھوٹے ہوئے روزوں کو بعد میں وہ پورا
करेगी, इसमें फिदिया नहीं चलेगा। ये सोच ले कि हम अब 3 साल के 2 साल दूध में और 1 साल हमल में 3 साल के छूट गए, तो अब 90 रोजे हम कैसे रखेंगे? उसको रखना पड़ेगा। सर्दियों का दिन का इंतजाम कर लो। सोच लो 4 महीने सर्दी रहती है, आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में रोजा रखना शुरू कर दो, आपको रखना ही पड़ेगा। ये रोजा आपके ऊपर से बहरहाल माफ नहीं हो पाएगा। हाँ, ये बहुत बूढ़ा आदमी है और दायमुल मरीज है, अब डॉक्टर ने कह दिया ठीक हो ही नहीं सकता है, ऐसा आदमी जितने भी रमजान पाएगा उसको रोजा माफ है, लेकिन फिदिया उसको फिर भी देना पड़ेगा आधा सा गेहूं के हिसाब से। तो हमें और आपको इन मसलों को जानना बहुत जरूरी है और सोचना भी चाहिए। रोजे की हालत में कै आ जाए, उल्टी हो जाए, अगर खुद से होती है तो कोई बात नहीं, रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने हलक में उंगली डालकर आ करके कै किया है, जैसे मान लीजिए कुल्ला किया और वजू बनाते वक्त अब आपको शक हो गया, पानी थोड़ा सा मुंह में हलक में यहाँ अटका करके, अब आपने उल्टी कर दी, ये जानबूझ के आप कर रहे हैं, क्योंकि वजू करते वक्त जबान पर चिपके हुए पानी अगर जबान की थूक के साथ अंदर चले जाए तो रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछले साल हमारी शाही मस्जिद में किसी ने मसला पूछा था, हमें याद आता है, नाम नहीं बताऊंगा, यही पूछा था कि मौलाना साहब जबान में वुजू बनाते वक्त ये पानी चिपक जाता है कुल्ला करते वक्त, अगर ये थूक के जरिए अंदर चला जाए तो रोजे पे कोई फर्क पड़ता है? मैंने उससे कहा कि कल बेटा जुमा है, कल मैं जुमा पढ़ाऊंगा तो कल मैं ये मसला बता दूंगा। उसने कहा आज ही बता दो। मैंने कहा कल बता दूंगा तो सबको पता चल जाएगा। उसके बाद में हमें उस लड़के की हिस्ट्री पता चली, तो जुमे के खुतबे में आगे ही बैठा था वो शाही मस्जिद में। अब वो सोचा था मेरा मसला आज मौलाना हल करेंगे, तो वो आगे ही बैठा हुआ था। और मैंने पिछले साल जो रमजान के महीने में खुतबा दिया, मैंने कहा ऐसा मसला पूछने वाले लोग बेचारे कितने बड़े मुत्तकी लग रहे हैं। जबान में अगर पानी लग जाए तो हलक के नीचे चला जाए तो क्या कोई फर्क पड़ता? मैंने कहा ये मसला पूछने वाले वो लोग हैं जिनकी बहनों ने मौलाना जर्जी से आकर शिकायतें की हैं। अगर भाई अपनी विरासत में से अपने बहन को हक न दे और मार ले तो उसके रोजे कबूल होंगे या नहीं, उसकी नमाजें कबूल होंगी नहीं। ये मसले वो पूछते हैं जो अपनी बहनों का हक मारे बैठे हुए हैं और अपनी विरासत में से अपनी बहनों को हक नहीं। और तकवा का मयार देखो कितना बड़ा है कि अगर पानी थोड़ा सा हरक के जरिए, अगर थूक के जरिए अंदर चला जाए तो रोजे पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं? मेरे भाइयों जरा गौर करो, जरा अंदाजा लगाओ। हजरत उमर फारूक से जब किसी ने तवाफ करते वक्त कूफा के किसी आदमी ने पूछा था कि मैं कूफा से आया हूं और एक मच्छर है वो हलक में चला गया है, तो क्या वो मच्छर मेरे मुंह में जो मुंह खोला जमाई आई हलक में चला गया, अब वो मच्छर तो मर गया, अब हराम की हालत में मच्छर को मारना भी हराम है, तब दम यानी खून वाजिब हो जाएगा, तो क्या ये मच्छर जो मेरे मुंह में जाके मर गया, क्या इस पर मेरा खून है? क्या इस पर हमें कुर्बानी देना पड़ेगी? तो हजरत उमर फारूक ने क्या कहा था, हमसे आज मच्छर को हलक में ले चला जाए तो कि उसे हराम का क्या हुक्म है? यह मसला वो पूछते हैं जिनके दामन पर हजरत हुसैन का खून लगा हुआ है, हुसैन के कातिल हैं, जिन्होंने यानी मगर मच खा रखे हैं, वो पूछ रहे हैं मक्खी को मारने का क्या कोई गुनाह है कि नहीं है? मेरे भाइयों जरा गौर करो, जिन्होंने अपनी बेटियों का हक मारा है आज वो पूछें, शादी कर दी जाओ बेटी हो, अपनी बेटियों का हक जो उसमें मारे फिर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं मौलाना साहब हलक के पानी थूक के जरिए अंदर चला जाए तो रोजे का क्या हक है, रोजे का क्या हुक्म है? और सुन लो, 50 लाख का भी जहेज दे दोगे अपनी बेटी को तब भी आपकी विरासत में वो हकदार रहेगी। ये शरीयत है, समाज में नहीं चलता है। समाज मेरे जूते की ठोकर के नीचे, मौलवी जर्जीस समाज को कोई हैसियत नहीं देता है। समाज मेरे जूते में लगी हुई गंदगी का मुकाबला नहीं कर सकता है। समाज की हैसियत क्या है, समाज में क्या चलता हो क्या नहीं चलता छोड़ दो, समाज में क्या चलता है? समाज में तो नेताओं के यहाँ लोग जाकर रोजा इफ्तार करते हैं, गैर मुस्लिमों के यहाँ, और जब सब कुछ नहीं मिलता तो डेगों में कूद कर खीर तक चाट के आते हैं गैर मुस्लिमों के यहाँ। समाज में तो ये भी बुराई है, हमें नहीं मालूम है? शिवपाल ने कराया था रोजा इफ्तार और क्या हुआ था, और उस दिन के बाद से रोजा इफ्तारी बंद करा दिया था। और यही कौम थी जब खत्म हो गया सब कुछ तो डेगों में कूदकर जिन्होंने खीर तक चाटी थी। मेरे भाइयों समाज में तो ये बुराई भी पाई जाती है, तो क्या ऐसे समाज को हम अपने सर पर रख के ढोएं? ऐसा समाज शरीयत के आगे जूते की नोक पर है, समाज की कोई हैसियत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों 50 लाख का नहीं 1 करोड़ का भी जहेज दे दो,
बाप के मरने के बाद लड़की बाप की विरासत में हकदार रहेगी। लड़के से आधा हक उसको मिलेगा। आधा इसलिए मिलेगा लड़के से क्योंकि अब भाई की विरासत में से भी उसका हिस्सा है, शादी के बाद शौहर की विरासत में से भी उसका हिस्सा है, और जब उसका बेटा पैदा होगा तो बेटे की विरासत में से भी उसका हिस्सा है। अल्लाह के रसूल ने लड़की को इतना इज्जतदार बनाया है कि मान लीजिए एक मिसाल मैं दे रहा हूं, जैसे मेरी बीवी है, मेरी बीवी अपने बाप की विरासत में भी हकदार है। अब मेरी बीवी है, मेरी विरासत से में से भी हकदार है। अब बाप की विरासत से उसके भाइयों को जो मिला है वो अपने भाइयों की विरासत से में से भी हिस्सेदार है, और हमारे बेटों को हमारी विरासत से जो मिलेगा वो हमारे बेटों की विरासत से भी हकदार है। गौर करो मेरे भाइयों, एक लड़की का हक कोई मार सकता है? एक बेटी का हक कोई मार सकता है? जब शरीयत ने मुतय्यन किया है, जो मार रहे वो डाकू हैं, वो चोर हैं, वो डकैत हैं, लंबा चौड़ा जहेज देकर वो बचना चाहते हैं, नहीं बच सकते हैं। वो अपनी बहन को भी देंगे, बेटी को भी देंगे, बीवी को भी देंगे, और बेटा है तो बेटे की विरासत से में से उसकी मां हक पाएगी। ये शरीयत ने इज्जत दी है एक औरत को। रमजान के महीने में सबके फैसले कर जाओ, रमजान के महीने में वसीयत कर जाओ और बता जाओ कि मेरे मरने के बाद कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला करना, क्योंकि जिंदगी में तो आप नहीं दे सकते हो, जिंदगी में विरासत है ही नहीं, आप अपनी जिंदगी में नहीं दे सकते हो, और जिंदगी में अगर इंसाफ करना चाहते हो तो सबको बराबर बराबर देना पड़ेगा। यानी अगर 1 लाख रुपया बेटे को दे रहे हो तो 1 ही लाख बेटी को भी देना पड़ेगा। अगर आप 1 बीघा जमीन बेटे को दे रहे हो तो 1 ही बीघा बेटी को भी देना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में हदिया तोहफा होगा जो बेटे और बेटी के दरमियान बराबर है। विरासत मरने के बाद होती है, मरने के बाद बेटे को जितना मिलेगा उससे आधा बेटी को मिलेगा। इसलिए अपनी जिंदगी में वसीयत कर जाओ कि देखो हमें अल्लाह के यहां जवाब देना है, नमाजें लेकर जाओ, रोजे लेकर जाओ, हज लेकर जाओ, अल्लाह की कसम इबादतों की चाहे पूरी गठरी और पूरा बोझ तुम लेके जाओ, लेकिन अगर अपनी औलाद के ताल्लुक से वसीयत नहीं करके गए और आपने कोई ऐसा इस दुनिया में फैसला नहीं किया और मरने के बाद अगर आपकी औलाद के साथ इंसाफ नहीं हो सका तो अल्लाह अपना हक तो माफ कर सकता है, कोई कमी होगी, लेकिन बंदों के हक मारोगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। माफ कीजिएगा, एक बालिश्त जमीन अगर किसी ने किसी पर कब्जा किया है, कब्जा का मतलब यह है कि एक बेटे को ज्यादा दे दिया, एक को कम, अगर एक बालिश्त भी ये कब्जा करना हुआ, यानी बड़े भाई ने ज्यादा ले ली अब छोटे भाई को कम मिली, या छोटे भाई ने ज्यादा ले ली बड़े भाई को कम मिली, और बेचारा वो कहता रहा लेकिन मजबूरी में उसने ले लिया, ये भी नहीं लेंगे तो ये जालिम बाप कहीं ऐसा ना हो कि ये भी बड़े को ना दे जाए। मेरे भाइयों, एक बालिश्त जमीन पर भी किसी ने नाजायज कब्जा किया या नाजायज तरीके से ज्यादा ले ली, कयामत के दिन 7 जमीनों का तौक उसकी गली में डाला जाएगा। अरे एक लोहे की बेड़ी तुम्हारे जेलर डाल दे गर्दन में तो सर नहीं उठा पाते हो, 7 जमीन का तौक उस आदमी के गले में डाला जाएगा, कौन उठा पाएगा?